Becoming a bread, this sacrament of love and sacrament of humility. Lord, we worship you, we praise you, we glorify your name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Jesus. Spend some moments in silence, just thanking the Lord from the bottom of your heart for every blessing He's bestowed upon us. Thank Him for your wonderful family. Thank you for the gift of life. Thank you for your children. Thank Him for all the spiritual blessings He's bestowing upon you. Just thank Him.
Hallelujah. 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 Can you be seated? In the name of Jesus, I welcome you to this short moment of adoration and praise and worship. This sacrament of Holy Eucharist is a sacrament of love. This is God's love. There are more than 8,000 promises in the Bible. And one of my favorite promises, Matthew chapter 28, verse 20, I am with you till the end of times. And Jesus wanted to be present with us. He wanted to be with us. यीशु चाहते थे कि वो हमारे बीच रहें और उन्होंने अपने आप को इस पवित्र सैक्रेमेंट में ढाल दिया ताकि वो रोटी रूप में हमारे साथ मौजूद रह सकें। सिर्फ इतना नहीं, उनको हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ एक होना था। हम पवित्र मिसा बलिदान में हम उनको हमारे शरीर में लेते हैं और वो उनका शरीर हमारे शरीर के साथ एक हो जाता है ताकि वो जैसे हैं वैसे हम भी बन पाएं। बस बिल्कुल वही शरीर आज, वही प्रभु यीशु आज हमारे बीच में है। दिस इज ऑल्सो अ सैक्रेमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी, जिसकी चर्चा हम आज सुबह कर रहे थे। इतने तो विनम्र है हमारे प्रभु कि उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया। फिलिपियंस चैप्टर 2, ही एम्प्टीड हिमसेल्फ, और उन्होंने एक मानव का रूप धारण किया। ईश्वर से मानव होना उसे विनम्रता कहते हैं। मानव बनकर वो गरीब बने, गरीब बनकर वो एक गुनहगार की तरह क्रॉस पर लटकाए गए और एक गुनहगार की तरह उन्होंने अपने मृत्यु को भी स्वीकार लिया। और उसके बाद और विनम्रता, उन्होंने अपने आप को एक रोटी में ढाल दिया, रोटी बना दिया अपने आप को ताकि वो हमारे बीच मौजूद रह सके। ये sacrament, it's a sacrament of love and sacrament of humility. Hallelujah. 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 इस पवित्र एडोरेशन को हम कुछ अलग तरीके से हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा कोई भी पाप नहीं जो ईश्वर क्षमा नहीं कर सकता। But in 1 Peter chapter 5 verse 5, the word of God says, God opposes the proud and gives grace to the humble. He opposes the proud. He doesn't like pride. Pride is a nature and characteristic of the evil one. Jesus cannot compromise with pride because he himself is a meek and a humble of heart. In the morning, we were trying to understand how Jesus was such a humble servant. It is only through the spirit of humility we are able to be his servant. Allow God to use us according to his plans. In this adoration, my dear brothers and sisters, I am going to make you aware, or rather we are going to become aware of some subtle areas of our life, our attitudes, that can become a big block between us and God's grace, or that can prevent us from becoming God's worthy servants. I will help you reflect on each aspect. And after becoming aware and accepting that, yes, Lord, this aspect is there in me, this attitude is there in me, we surrender it to the Lord and ask the Lord, Lord, I want to change. And after each reflection, we all shall sing, change my heart, O Lord, make it ever new. Change my heart, O Lord, may I be like you. Some of these subtle attitudes, कुछ बातें जो हमें विनम्र बनाने से रोकती है। पहली बात, do you always think and believe that you are always right? This is pride.
क्या अपने जीवन में आप ये मानते हैं कि मैं ऑलवेज सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं या मैं सच्ची हूं, बाकी सारे बुरे हैं, बाकी सारे गलत हैं, मैं ही सच्चा हूं? अगर आप ये भावना से जी रहे हैं तो इसे घमंड कहते हैं, अभिमान कहते हैं। इसे ईगो कहते हैं कि मुझ में कोई बुराई नहीं है, मैं सच्चा हूं, मैं अच्छा हूं, बाकी सारे लोग गलत हैं, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। हमारे संसार में अगर हम ये सोच रखकर जीते हैं तो हमारे घर में बहुत सारे झगड़े हो गए, पति पत्नियों के बीच झगड़ा होगा, बच्चे और माँ बाप के बीच झगड़ा होगा। और क्योंकि ये घमंड है, हम ईश्वर से अपने आप को दूर रखेंगे। Just ask yourself right now, do I suffer from this attitude that I am always right? The way I think, the way I do things is always right. It's a surest form of pride. Let us surrender this area to the Lord and ask the Lord, Lord, I give you my consent. Change my mind and my heart. Change my heart, oh Lord. All together. Make it ever you. Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh Lord. May I be like you. May I be like you. Change my heart, oh Lord. Change my heart, Lord Jesus. Make it ever new. Make it ever new, Lord. Change my heart, oh Lord. May I be like you. Just surrender this area to the Lord and ask the Lord, Lord, bless me, Lord. The second aspect that we need to reflect upon. Do you feel that you are little more holy, talented, efficient, intelligent, and mature than the other? Especially many of us who are in the prayer groups, since we are part of the renewal, there could be a tendency in us where we feel that we are little better than the other. We are little better than the normal people who come to church. This is pride. Because Saint Paul defines humility in Philippians chapter 2 verse 3 as to consider the other as more important than self. क्या मैं ये सोचता हूं कि मैं दूसरों से ज्यादा पवित्र हूं, मुझ में ज्यादा कलाएं हैं, मैं ज्यादा निपुण हूं, मैं ज्यादा चालाक होशियार हूं, मैं ज्यादा परिपक्व हूं, तो इसे घमंड कहते हैं। क्योंकि संत पौलुस कहते हैं कि विनम्रता इसे कहते हैं जब हम दूसरों को अपने से जरा बेहतर माने। अगर मैं इस भावना से पीड़ित हूं, if I am suffering from this attitude, let us surrender this to the Lord. Let us surrender this attitude to the Lord. Many of us feel that I am a better singer than the other. I can read in a better way than the other. I am a better orator than the other. I am a better organizer than the other. I am a better writer than the other. I am a better priest than the other. This itself is pride. Lord, we want to surrender this attitude at your feet. Change my heart, Lord. Change me, my Lord. Change my mind and my heart. Change my heart.
heart, oh Lord. Make it ever new. Change me, Jesus. Change me right now, Jesus. Change my heart, oh Lord. I give you my consent, my Lord. Change me. May I be like I want to be like you, humble. Once again, all together. Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh Lord. Make it ever new. Make it ever new. Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh Lord. May I be like May I be like you. Yes, Lord, I have to be like you. Thank you, Jesus. Thank you for this moment of grace, Lord. Thank you for this moment of grace. God can do everything without our prayers. God knows all our needs even before we ask. Then why should we pray? Why should we ask God to do something for us? Because God needs our consent. God has given us the gift of freedom. प्रभु ने हमें चुनाव करने की शक्ति दी है. हम पसंदगी करते हैं. और अगर हम जो बातें नहीं चाहते हैं, ईश्वर हमारे बीच नहीं आएंगे. तो इस वक्त इस आराधना में हम क्या करें? हम प्रभु कह रहे हैं, प्रभु ये बातें हम तुम्हारे सामने ला रहे हैं. हम चाहते हैं कि तुम हमें बदलाव लाओ. हमें बदलना है. हमारे नेचर को बदलना है. हमारे स्वभाव को बदलना है. हमारी सोच बदलनी है. हमें बदल दो प्रभु यीशु. The next aspect. Are you able to see your own fault? Are we able to see our own faults? Not just that. And make conscious efforts to correct them. Acknowledge them. क्या हम हमारी गलती देख सकते हैं हमारे संसार में? अगर हम शादीशुदा हैं, तो क्या हमने अपनी पत्नी के सामने यह स्वीकार किया है कि हाँ, ये गलती मेरी थी, आई एम सॉरी? या अगर मैं पति हूं, तो क्या मैंने अपने बीवी के सामने ये इकरार किया है कि ये गलती मेरी थी, आई एम सॉरी? कभी कभी बच्चे भी सही हो सकते हैं. क्या मैंने बच्चों के सामने में ये कहा है कि बच्चे, हम भूल कर रहे थे, मिस्टेक हमारी थी, आई एम सॉरी? प्रभु, मैं यही सोच रहा हूं कि मेरी गलती हो ही नहीं सकती, मैं गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझ में घमंड है. I have never accepted my mistake, Lord, except sometimes going to confession. Lord, I am suffering from this attitude. I'm not able to see my mistakes, my inability. My pride doesn't allow me to see my own faults. Lord, I want your grace. I want healing in this area. Please help me to change myself. Bless me with your humility so that I can accept myself, my mistakes, my weaknesses, acknowledge them, and make conscious effort to correct them. Change me, Lord. Change my heart, Lord. change my heart, oh God. Make it ever new. Make it ever new. Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh Lord. May I be like you. May I be like you. Yes, Lord.
आई सरेंडर ऑल दीज एरियाज। ये सारी चीजें लॉर्ड मैं समर्पित करता हूं, मैं अर्पण करता हूं तुमको। हम इस प्रोग्राम में आए हैं, इस बाइबल अधिवेशन में आए हैं सिर्फ अपने आप को एंटरटेन करने नहीं, कुछ अच्छी बातें सुनने नहीं। मुझे बदलाव चाहिए, मेरे स्वभाव का बदलाव चाहिए, मेरे जीवन का बदलाव चाहिए, मेरी सोच बदलनी है। मेरे प्रभु मुझे बदल दो प्रभु, आपके सिवा मुझे कौन बदल सकता है प्रभु। आज ये मौका है प्रभु, आज वो वक्त, ये घड़ी है प्रभु। I am bringing before you all these areas of my life where I am struggling. Next area. Am I able to work in a team? Person with pride, they are solo performers. उनको अकेले सारी क्रेडिट लेनी है, वो टीम में काम नहीं कर सकते। प्रेयर ग्रुप में ये प्रॉब्लम आ सकती है, जब हमें एक ग्रुप में एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर अगर काम करना हो तो दिक्कत आती है। एंड व्हेन आई एम नॉट एबल टू वर्क इन अ टीम, आई एम टैलेंटेड, I can perform well individually, but as a team I find it very difficult. It's a sign of pride. मैं झुक नहीं सकता, सारी क्रेडिट मुझे लेनी है, मैं क्यों किसी के साथ जुड़ूं। Ecclesiastes कहते हैं Two are better than one. Chapter 4 verses 9 हमें बताते हैं कि एक से भले दो, और टीम में काम करना ये एक आध्यात्मिकता है। प्रभु यीशु सब कुछ अकेले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक टीम प्रस्थापित की 12 शिष्यों की, और इन टीम के जरिए उन्होंने ये तारण का कार्य, ये मुक्ति का कार्य आगे बढ़ाया। प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए, तुम्हारा स्पर्श दीजिए, so that I may be able to work as a team, keeping aside all my differences and my pride. Change my heart, Lord, change my mind. Change my heart, oh Lord. Make it ever new. Everybody. Change my heart, oh Lord. May I be like you. दोस्तों, ये धन्य घड़ी है जब आप हम सब प्रभु यीशु के सामने मौजूद हैं। क्विकली कुछ बातें हम देख लेते हैं और हम रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या ये मेरे स्वभाव में है, क्या ये मेरे नेचर में है। जैसे कि क्या मैं किसी के हाथ के नीचे काम कर सकता हूं? कैन आई वर्क एज अ सबऑर्डिनेट? कैन आई वर्क अंडर समवन? एम आई कंफर्टेबल वर्किंग अंडर समवन? If I am not, it's a sign of pride. Do I long for appreciation? क्या मैं प्रशंसा के लिए तड़पता हूं या तड़पती हूं कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे कपड़ों की प्रशंसा करें, मेरे हेयर स्टाइल की प्रशंसा करें, मेरे गहनों की प्रशंसा करें, मेरी जॉब की प्रशंसा करें, मेरे बच्चों की प्रशंसा करें। क्या हम प्रशंसा के भूखे हैं? ये घमंड है। कुछ बार और कई बार मैं कुछ बातें सिर्फ इसीलिए करता हूं ताकि मुझे लोगों की वाह-वाह, लोगों की प्रशंसा मिले। इसे घमंड कहते हैं। अगर मुझ में यह है तो आज प्रभु के सामने बिल्कुल दिल खोलकर बताना है, प्रभु मुझ में यह है बात,
मुझे बदल दो प्रभु। मेरे लिए सिर्फ एक ही बात महत्व की होनी चाहिए कि आप मेरे से खुश हो के नहीं, दुनिया चाहे जो भी कहे, आप मुझसे खुश हैं कि नहीं। दूसरी बात, क्या मेरे स्वभाव में आर्ग्यूमेंट्स करना है? मैं बहुत आर्ग्यू करता हूं या आर्ग्यू करती हूं, दलील करता हूं। कुछ बातें होती है तो आर्ग्यूमेंट्स। डू आई हैव आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर? दलीलबाजी। और दलील का लक्ष्य होता है कि कौन सच्चा है। और अगर मैं दलील करता हूं तो उसका लक्ष्य यह है कि मैं दूसरों को बताना चाहता हूं कि मैं सच्चा हूं, तुम गलत हो। इट्स अ वेरी सटल फॉर्म ऑफ प्राइड, आर्ग्यूमेंट्स करना। क्या ये मेरे स्वभाव में है? और यदि है तो मुझे सावधान बनना है। आई हैव टू बिकम अवेयर ऑफ इट फर्स्ट ऑफ ऑल। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अवेयरनेस। द फर्स्ट स्टेप towards transformation is awareness। और आज प्रभु यीशु के सामने हम ये बातें खोलकर प्रभु यीशु के सामने ला रहे हैं कि प्रभु मुझ में है ये सब बातें हैं, और ये सब बातें घमंड के साथ जुड़ी हुई है। प्रभु मुझे बदलनी है, लेकिन मैं ये ताकत नहीं रखता हूं कि मैं मुझ में ये बदलाव ला सकूं। प्रभु आप मेरी हेल्प कर दीजिए। प्रभु मैं दुखी हूं प्रभु, तुम्हारे कृपाओं का मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं इस मेरे घमंड के कारण। मैं अपने आप को वंचित महसूस करता हूं प्रभु। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं प्रभु ताकि आप मुझे समझो। मैं आपको यह अधिकार देता हूं प्रभु, मुझे बदल दो प्रभु। मुझे बदलना है प्रभु, मेरी सोच बदलनी है, मेरे विचार बदलने हैं, मेरा जीवन बदलना है प्रभु। मेरे स्वभाव के कारण घर में अशांति है प्रभु, मुझे बदल दो प्रभु। ये बातें और कई और बातें जो हमारे घमंड के साथ जुड़ी हुई है। जब हम किसी को माफ नहीं कर सकते हैं, जब हम किसी का न्याय करते हैं कि तुम सच्चा हो, तुम बुरा हो, तुम गलत हो, तुम सही हो, इसे न्याय करना कहते हैं। एंड जीसस सेज डू नॉट जज। एंड मदर टेरेसा वुड से व्हेन आई जज आई डू नॉट हैव टाइम टू लव। Judgment is for God, and we are called to love. And when I am judging people at good, bad, right and wrong, I am indulging in judgment. Yes प्रभु, मैं बात बात पर लोगों को जज करता हूं। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं हीलिंग चाहता हूं प्रभु, मैं हीलिंग चाहता हूं। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. 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 दोस्तों ये जो बातें हमने अभी आपसे कही है, मुझे अभी नोट आया है कि फादर जी आप केवल हिंदी में ही बातें करें। आप सब हिंदी समझ रहे हैं, है ना? दोस्तों लूक, वी हैव टू प्रे विद द वर्ड ऑफ गॉड। लूक चैप्टर 17 वर्स 5, उसमें प्रभु यीशु हमें एक तरीका दिखाते हैं। और यह तरीका क्या है? फ्लोरा जी आप हिंदी में बताएंगे मुझे। लूक चैप्टर 17 एंड वर्स 5। पहले तो प्रभु यीशु के शिष्य कहते हैं कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाओ, इंक्रीज आवर फेथ। एंड देन जीसस सेज इफ यू हैव फेथ एज बिग एज द मस्टर्ड सीड, इतना सा, जरा सा, अगर इतना सा भी विश्वास तुम में है, and if you ask the mulberry tree to be uprooted, mulberry tree का मतलब होता है एक ऐसा पेड़ जिसको आप काट सकते हो,
उसको तुम अप्रूट नहीं कर सकते, कि उनके जो रूट्स होते हैं वो दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। मलबरी ट्री को अप्रूट करना असंभव है, लेकिन प्रभु यीशु कहता है इतना सा अगर फेथ आप में है, और यदि आप मलबरी ट्री को कहते हो कि तू अप्रूटेड हो जा और निकल यहां से, तो प्रभु यीशु का ये विश्वास है, प्रभु यीशु हमें ये विश्वास दिलाता है कि वो मलबरी ट्री आपका कहा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, ये सारी जो बीमारियां हैं ना हम में, हमारे शरीर में, ये हमारे मलबरी ट्रीज हैं। आप हिंदी में पढ़ेंगे वो लूक 17:5। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। हमारा विश्वास बढ़ाइए। या प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े हो जाओ। हमारी सारी बीमारियां ये मलबरी ट्री है। सर में दर्द होता है, ये मलबरी ट्री है। आपके शरीर में डायबिटीज है, ये आपका मलबरी ट्री है। आपको किडनीज की बीमारी है, आपका मलबरी ट्री है। आपके फेफड़े कमजोर हैं, ये आपका मलबरी ट्री है। आपको सांस लेने की तकलीफ हो रही है, ये आपका मलबरी ट्री है। आपको पेन हो रहा है, आर्थराइटिस है, ये आर्थराइटिस आपका मलबरी ट्री है। और प्रभु यीशु कहता है कि अगर विश्वास है, तुमने उसको कहा कि निकल मेरे शरीर से बाहर जा, तो प्रभु यीशु का वचन कहता है वो आपका कहा करेगा। तो दोस्तों, आइए हम हमारी सारी बीमारियों को इस वक्त विश्वास के साथ प्रभु यीशु के सामने हमारे शरीर से दूर निकालें। प्रभु के उस वचन के साथ हम प्रार्थना करें जो वचन प्रभु ने हमें दिया है। If you command the mulberry to be uprooted, it will listen to you. आइए प्रभु यीशु के सामने पहले तो विनती करें, अपना दाहिना हाथ प्रभु यीशु की तरफ बढ़ाइए और प्रभु यीशु को कहते हैं, प्रभु यीशु, मेरे साथ दोहराइए, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मेरा विश्वास बढ़ाओ, मेरा विश्वास बढ़ाओ, मेरा विश्वास बढ़ाओ, मेरा विश्वास बढ़ाओ। और दोस्तों, आइए आप में जो भी बीमारियां हैं, मैं भी आपके लिए प्रे करूंगा यहां से। विल प्रे फॉर द स्पेशल हीलिंग। लेकिन आप में जो बीमारियां हैं, आप जिस बीमारी को जानते हो उसका नाम देकर, जैसे घुटनों का दर्द, प्रभु यीशु के नाम से मेरे घुटनों में से इसी वक्त बाहर निकल जा। पेट की बीमारियां, तुम इसी वक्त मेरे पेट में से बाहर निकल जाओ। जो भी बरगद का पेड़, जो भी पेड़, जो भी बीमारियां आपके शरीर में मौजूद है, उसे कहो, हुक्म करो प्रभु यीशु के नाम से, और प्रभु कहता है कि वो आपकी कहेगा। और मैं आपके लिए प्रभु यीशु के समक्ष प्रेयर करता हूं ताकि हमें प्रभु ये चंगाई दे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आई थैंक यू, प्रेज यू एंड गिव यू ग्लोरी फॉर एवरी ब्लेसिंग यू bestow upon. Lord Jesus, right now I take complete authority in your mighty name, Lord Jesus. Lord, in your mighty name I command every spirit of sicknesses, my Lord, present over here, to be uprooted, my Lord. Let every sicknesses be uprooted in the mighty name of Jesus. Be bound, Lord Jesus. Let every curses, witchcraft, sorcery, black magic, evil afflictions, past sin, guilt, ancestral bondages, all the chains be broken in the mighty name of Jesus. Let every sicknesses, my Lord, be present here among these people, my Lord. I bind them in the mighty name of Jesus. I command in the name of Jesus, be uprooted and get out right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Come with the mighty power, come with the mighty power, come with the mighty power, come with the mighty power. Just command in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. फेफड़े की बीमारी, किसी को फेफड़े की बीमारी है, किसी को फेफड़े की बीमारी है, प्रभु यीशु उसको चंगाई
चंगाई दे रहा है। फेफड़े की बीमारी है, आपको सांस लेने की तकलीफ हुई है, बीमारी इसी वक्त आपके शरीर से बाहर निकल रही है। Start praising the Lord. Thank you Jesus. Softly, 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 softly. Thank you Jesus. 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 Praise you Jesus. कई लोगों को रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी, यहाँ से आप झुक नहीं सकते, और कई लोगों को प्रभु यीशु इस वक्त चंगाई दे रहे हैं। Many of you are being healed from the spinal cord, some sicknesses of the spinal cord. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Thank 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 you Jesus. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Command in the name of Jesus in faith. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Migraine, migraine है, कई लोगों को migraine है, और इसी वक्त आपको चंगाई मिल रही है। Hallelujah. Many are getting healed from the sickness of migraine. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Arthritis, arthritis, घुटनों की बीमारियां, कई लोगों को प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 There are 2 persons in the hospital on ventilator. 2 persons in the ventilator in the hospital, and somebody is praying for them. The Lord is blessing them. The ventilator will be taken out. The Lord is blessing them. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. We praise and glorify your name, my Lord. Thank you Jesus. 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 Praise you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise you Jesus. The Lord is blessing somebody with a new house, praying for the house. The Lord is blessing the person. Thank you Jesus. There are some couples without child, and the Lord is blessing you with a child. प्रभु आपको बच्चे दे रहे हैं। कई couples हैं जिनको बच्चे नहीं है, प्रभु आपको बच्चे दे रहे हैं। Thank you Jesus. 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 There is skin allergy. किसी को skin allergy है, skin allergy है, और प्रभु चंगाई दे रहे हैं। Skin allergy में से चंगाई दे रहे हैं। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Frozen shoulders are being healed. Frozen shoulders are being healed. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Thank you Jesus. किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है, बहुत सारे हफ्ते हो गए हैं, आप बिल्कुल खोखले आ रहे, खांसी आ रही है, और ये इन्फेक्शन जा रहा है, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं इस वक्त। Thank you Jesus. Praise you Jesus. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Praise you Jesus. Thank 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 you Jesus. Just receive the blessings. Just receive the healings in the name of Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thanking the Lord for all that He's been bestowing upon us. I invite Father George to come, and we prepare ourselves for the final blessings. We have the benediction hymn. Let us bow in adoration to this sacrament so great. Here is new and perfect word.
Let's all bow our heads, fold our hands, and in the spirit of humility, receive God's blessings. O